पॉडकास्ट करने वाले हैं, वी आर डूइंग इट विद एन इंडस्ट्री स्टॉलवर्ट एंड एन इंडस्ट्री वेटरन. हिज मार्केट नॉलेज इज एक्सेप्शनल. There are multiple parameters which will tell you that right now we are in a speculative bubble, which I actually feel we are. बबल से कोई डरने की बात नहीं है. हमारी रियल एस्टेट साइकिल का नेचर ही ऐसा है कि आता है बबल. बुबली आप देखेंगे कैनेडियन एक्सपर्ट्स, अमेरिकन एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कि नाउ दिस इज वी आर इन बबल टेरिटरी. लेकिन मार्केट वो सीधा कान पकड़ के नीचे उतार देती है. हर 12 साल की विंडो में, 15 साल की विंडो में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल ऐसे आते हैं. एंड द रियल मनी इज टू बी मेड. अमीर बनने का यही तरीका है. What is your take on SEO investments and retail investments? लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी विल ओनली बीट इन्फ्लेशन बाय 2-3 पॉइंट्स. अभी के पर्सपेक्टिव में जो नैरेटिव लोग सुन रहे हैं उनको लगता है ये सोने की खान है, इसमें जो हाथ डालेगा वो बहुत पैसा है. गुड़गांव की स्टोरी आगे बढ़ चुकी है. और दिल्ली कांट रिवर्स इट. गुड़गांव वाज, इज एंड विल रिमेन बेस्ट रियल एस्टेट मार्केट ऑफ इंडिया. मैंने तो पूरी 35 साल की जर्नी देखी है. एक तो प्राइस बढ़ा है, दूसरा सुपर एरिया को ऐसा स्क्वीज करा है कि आई डोंट नो व्हाट रेरा इज डूइंग. वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड. आज एक बर्निंग क्वेश्चन गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में सबका है कि वेयर इज द मार्केट हेडेड. 2021 से 2024 तक हमने बहुत बुल रन देखा. प्राइसेस वेंट अप 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स. कई लोगों ने 100% अप्रिसिएशन एक साल, 6 महीने में बनाए. उसके बाद द मार्केट इन 2025 slowed down. Some people called it a crash, some people said whatever. लोगों की बड़ी सारी बातें, but most of them, let me tell you, aren't experts. So that is why on a huge public demand, हम आज जो पॉडकास्ट करने वाले हैं, we are doing it with an industry stalwart and an industry veteran who's seen this industry through various cycles, various government law changes, various infrastructure development. He's been instrumental in developing a lot of brand names जो कभी किसी ने सुने नहीं थे, उनको नॉन ब्रांड से बड़ा ब्रांड बनाने में his strategy, his market knowledge is exceptional. एंड उन्होंने ये बहुत बार ऊपर नीचे जाते देखा है. तो हमने बुलाया पंकज पाल जी को, who has been our guest earlier as well, and he will have a conversation with us which will be very useful for you कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, what should be an outlook of a developer, a new developer, an old developer, somebody who's looking to get into development, and a home buyer as well. Thank you, Pankaj ji, for being with us. Thank you, Vipin, and thank you very much for your kind words. It's a pleasure to be here with you. Thank you. सीधा मार्केट पे चलते हैं. हाँ. आपने तो कई साइकिल देख लिए, कहते हैं कई सावन देख लिया. Yes, sir. I have had a ringside view of the market for the last 35 years. 35 years. And that was the time Indian market was, real estate market in the true sense was actually being born. The way we see it now, that was the birth time of Indian real estate market. Before that, we were kind of a quasi-socialist country. Things were very different. तो यहाँ 35 साल से मेरी रिंग साइड व्यू मार्केट की रही है. और मैंने ये मार्केट जैसे आपने कहा कि I've seen all these market cycles happen in front of my eyes. And I've seen the ups and the downs and the dynamics which make these ups and downs in the market cycles behave the way they actually do. So I've had a ringside view. You know what while we're talking about the real estate cycles today, but these cycles are not only constrained or limited to the real estate industry. अच्छा. These happen with any industry, whether it's the steel industry or the shipping industry. You know, I was once a part of a shipping company. Yeah. They had a pan-India real estate division, so I was in that company. So I know that all industries have their own cycles. So it is what makes these cycles happen, first of all. Well, we should understand the true dynamics of the cycle. And then come to the micro of it. What is going to happen now, or what is happening in Gurgaon in particular? What is the psychology of the cycle? What is the fundamental dynamic of the cycle? See, dynamic of the cycle is a mix of economics, macro level fundamentals, micro fundamentals, in the case of real estate of that particular city, of that micro market, and psychology, the investor psychology. That also plays a huge role. So, you know, amongst all these industries I told you, there's some industries where leveraging starts playing a very big role.
whenever the cycle is on uptrend, the power of leveraging. That means taking up loan. You know, leveraging is that you, if a thing is valued at 100 और आप उसमें 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए तक डालते हो 25 रुपए डालते हो, बट आपका जो गेम है, आपकी अप्रिसिएशन है, what you earn on the entire 100. Correct. You know, so for example, in the stock market, if you buy the future of Nifty or a particular stock, you pay only 10-15% of the amount. So if the market, that spot of that particular Nifty index or that stock goes up by even 10%, you double your money. Double your money. Yeah. But उसका flip side equally dangerous है कि वो जीरो हो जाता है. अगर वो 10% गिर गया तो वो आपका जीरो हो गया. स्टॉक मार्केट में आप उसको थोड़ा ना, जब थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, आप फ्यूचर को रोल कर सकते हो आगे, कीप ऑन रोलिंग इट टिल द थिंग्स रिवाइव, और आप उसको हेज कर सकते हो ऑप्शंस के साथ. बट रियल स्टेट में जब व्हेन द मार्केट इज ऑन अप ट्रेंड, तो फ्यूचर्स की तरह जो लोग उसको ट्रीट करते हैं, दे हैव 10 रुपीज इन द पॉकेट, दे विल प्ले फॉर प्रॉपर्टी वर्थ 200, देन वहाँ आप रोल ओवर नहीं कर सकते. देन यू हैव टू फोरक्लोज एंड फॉरफीट योर दिस, पैसे ही चले आप. सो बट यू नो साइकोलॉजी, जब ये अपसाइकिल होती है, एंड फ्यू सक्सेस स्टोरीज, दे हैव अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट इम्पैक्ट ऑन द साइकोलॉजी. जब रियल स्टेट साइकिल का जो अप ट्रेंड होता है, द बुल फेज, दैट ऑफन स्टार्ट्स आफ्टर जो प्रीवियस साइकिल के पीक से मार्केट कम से कम नीचे आ चुकी होती है, 20-25-30% नीचे आ चुकी होती है. क्योंकि जो पीक होती है हमेशा पुराने साइकिल की एक इरेशनल पीक होती है, उससे 20-25-30% नीचे गिरती है. उसके बाद पीपल इतने हक्के बक्के रह जाते हैं, वो टिपिकल 7 साल तक 6 साल तक वो इन्वेस्ट करते नहीं है. इसी अप ट्रेंड से पहले, दिस अप ट्रेंड हैज स्टार्टेड हैपनिंग इन 2021 अपवर्ड्स. उससे पहले सारी ये जो गुड़गांव की सो कॉल्ड हॉटशॉट चैनल पार्टनर कम्युनिटी है, दे आर सो एक्साइटेड, रनिंग अराउंड सेलिंग कॉन्डोज, चेक लगा दो. Although they don't talk about selling homes anymore, they say चेक लगाना. ये न्यू जब ये टर्मिनोलॉजी आ जाती है तो मैं बहुत लगा दो. बोले ये मैंने घर बेचा है वो नहीं है, मैंने चेक लगवाया है. यार इन्वेस्टर मेरे 3 चेक लगा दो. मैंने कैफे में देखा है चैनल पार्टनर के, सर मेरे कहने से आप ना 5 चेक लगा दो, मैं बैठा हूँ. वो बंदा है कि पसीने छूटे, डरता है, अरे मेरे कहने पे घर नहीं खरीद रहा, 5 चेक लगा रहे. ये टर्मिनोलॉजी. सो तो जब ये चीज शुरू होती है, यू नो, जब पुरानी पीक से 20-25-30 2011 से, उसके बाद स्टैंडर्ड के बाद ऑल दी चैनल पार्टनर्स, इनको कितनी कोशिश कर लो, ये ग्रुप हाउसिंग करने को तैयार ही नहीं थे. 2020 तक रिक्वेस्ट कर लो, उनको फ्री एड्स दे दो. मार्केट जस्ट डिडंट हैव द ट्रैक्शन. देयर वाज सो मच शॉक इन द मार्केट. और जो मार्केट में फ्रॉथ होती है, उस फ्रॉथ को क्लियर करने के लिए टाइम लगता है. सो यू नो, उसके बाद जब ये आपकी इन्वेंटरी ओवरहैंग, वो सारा हल्के हल्के क्लियर हो जाता है, उसको सारा एडजस्ट कर लेती है मार्केट पुराने इन्वेंट्री ओवरहैंग को. और टाइम करेक्शन आपकी 20-30% गिरी है, 5-6 साल प्राइसेस नहीं बढ़े तो टाइम करेक्शन भी हुई. और हल्के हल्के इनकम्स बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो इकोनॉमी इज डूइंग वेल. हाँ, अफोर्डेबिलिटी फिर से रिवाइव, अफोर्डेबिलिटी के शूट्स वापस आते हैं. एंड जब अब लोग ले रहे हैं, तो मैंने एक घर लिया, पुरानी इन्वेंट्री साइकिल की इन्वेंट्री बची हुई थी, मैंने लिया उसको 2 करोड़ में, वो थोड़ी देर में 2.20 का हो गया. मेरे फ्रेंड ने सुना, वो भी अंदर आता है, इंड्यूसर्स आते हैं पहले. उनकी स्टोरीज, इंट्रूडर्स की स्टोरीज इनवाइट करती हैं इन्वेस्टर्स को. इन्वेस्टर्स होता है कि भाई चैनल, आपने सुना होगा चैनल पार्टनर इन्वेस्टर ने रेडीमेड कॉन्डो में एक फाइल उठा ली, है ना, फाइल उठा लेते हैं, फिर वो 3 महीने में ट्रेड कर देते हैं जब वो जोन आता है. देन कम्स द क्रेजी पार्ट व्हेन डेवलपर्स हियर दैट एंड द इन्वेस्टर्स, न्यू लॉन्च जब आती है फटाफट बिक जाती है. द प्रीमियम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज इमीडिएटली इज देयर. आपने बुक किया बिफोर, आप 10% का EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे प्रीमियम मिल जाता है लोगों को. 25 लाख में 25 लाख. इस बार जो रैली हुई है, आई हैव सीन सो मेनी यंग पीपल हु कम टू मी, सर मैंने ना बहुत कमाए, मैंने ये प्रोजेक्ट आया था, इसमें मैंने 30 चेक लगा दिए, और मैंने 10-10 तक लगाया कि 10-10 में मैंने 20-20 लाख कमा लिया. तो जो व्हेन दीस स्टोरीज स्टार्ट हैपनिंग, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट्स हैपनिंग. हमेशा अगेन इस एक्सुबरेंस में मार्केट अगेन ओवरशूट्स रैशनल लेवल्स. एंड साइकिल का एक कैरेक्टर होता है कि व्हेन एक्सुबरेंस इज देयर, यू नो, एवरीबॉडी वांट्स टू कैश इन. Brokers want to cash in. Many new kids come into the brokerage business. Many people feel, यार इसमें तो ज्यादा इनकम है rather than my core business.
बहुत सारे बिजनेसमैन इन्वेस्टर बन जाते हैं। उसका जो डेवलपर्स हैं वो अपनी जो उनकी बिजनेस प्लान होता है उसको थोड़ा एक्सपेडाइट करना शुरू कर देते हैं। एम्बिशियस हो जा रहा वो 10 साल में उन्होंने सोचा था हम इतना माल बेचेंगे, 15 साल में बेचेंगे, दे स्टार्ट एक्सपेडाइटिंग एंड दे स्टार्ट कंप्रेसिंग द टाइमलाइंस। है। सो जो इन्वेंट्री इन द नॉर्मल कोर्स 10 साल में अब्जॉर्ब होनी थी, दैट गॉट्स डंप्ड इन द मार्केट इन अ पीरियड ऑफ 2 years फॉर एग्जाम्पल। दैट क्रिएट्स ओवर सप्लाई। जब ओवर सप्लाई हो जाती है, प्राइसेस आर, सी मेनी ऑफ द सेल्स आर दीज फ्यूचर बायर्स, थोड़ा सा अपना स्किन इन द गेम डाल के पूरी अप्रिसिएशन खाना चाहते हैं। व्हेन दीज रेशियोज स्टार्ट गोइंग रॉन्ग जब ये एंड द सप्लाई इज व्हेन यू आर सेइंग रेशियो स्टार्ट गोइंग रॉन्ग, उसका क्या मतलब है? See, there are multiple parameters which will tell you that right now we are in a speculative bubble, which I actually feel we are. You know, see, many people at times say, "Why do you say so? You're not helping the market." But I think when you say the truth, you're actually Helping the market, trying to guide the market in the right manner. In the right manner, yeah. So you know, when I said when the parameters, these ratios go wrong, there are many of these ratios. सबसे होता है कि globally there is a concept called median income versus price, which defines the affordability. Okay. So demand and supply can be anything. देखिए, demand and supply is a very important parameter. जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, वो चीज़ कीमत बढ़ेगी. बट सूनर और लेटर अफोर्डेबिलिटी, जब तक इन्वेस्टर ड्रिवन थिंग है तो अफोर्डेबिलिटी डज नॉट मैटर, क्योंकि बहुत सारे लोग एंटर कर रहे हैं थिंकिंग कि उन्होंने पूरा पैसा देना ही नहीं है. हाँ. बट व्हेन थिंग्स गेट अ बिट सोबर, अल्टीमेटली अफोर्डेबिलिटी विल प्रिवेल. सो ग्लोबली द नॉर्म इज कि मीडियन इनकम का 3 times अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ग्रॉस इनकम, उसमें टैक्स कटेगा, घर के खर्चे होंगे. मीडियन मतलब एक फैमिली की इनकम जो है पूरी, हाँ, एक फैमिली की मीडियम इनकम. हाँ. वो तो भी एक एंटायर स्पेक्ट्रम होता है. उसको आप माइन्यूटली उस पर एक अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं. बट मीडियन ग्लोबल जो फिनोमेना है कि एक फैमिली की मीडियन इनकम जो है, अपने स्टेटस के हिसाब से लोग घर खरीदेंगे, उसके 3 times अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो ठीक है, इट्स अफोर्डेबल. अब 3 to 5 times वो चीज अनअफोर्डेबल, स्ट्रेच बढ़ने लग जाता है. 3 to 5 times अगर है, बियॉन्ड 5 times जब होती है तो इट इज सिवियरली अनअफोर्डेबल. मीडियम इनकम के बियॉन्ड 5 times हो. सो लेट मी टेल यू, एक वक्त था, आई टेल यू द रेशियोज व्हिच आर ग्लोबली अब जो भी चल रही हैं, लेकिन एक वक्त था द अमेरिकन ड्रीम. हम कॉलेज से पास आउट हुए तो बहुत सारे लोग जाते थे 1990 के अर्ली में. एक अमेरिकन ड्रीम होती थी कि कोई भी अपना प्रोफेशनल, चाहे वो कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो नर्स हो, वो अमेरिकन ड्रीम थी कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप एक घर खरीद सकता था बच्चा, यंगस्टर, और घर खरीदने के बाद फैमिली रेज कर सकता था. तो तब यूएस में द मीडियन इनकम की जो इनटू 3 times के रेशियो से बहुत नीचे था हाउसिंग. अच्छा, तो दैट वाज अ ग्रेट अफोर्डेबल था. अफोर्डेबल था. लेकिन आज ग्लोबली द ऑल एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि अगेन वी आर इन द 2008 टेरिटरी. Lehman crisis हुआ था. Some people, the warnings had started coming. People were ignoring those warnings. People ignored these warnings till the time the bubble burst. तो तब वो अगेन मीडियन इनकम वर्सेस हाउस की प्रॉपर्टी की वैल्यू वो स्क्यू हो गई थी. बट राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस रेशियो मीडियन इनकम वर्सेस द प्रॉपर्टी प्राइस, इंडिया में दिस इज 8.8. तो वो 5 से ऊपर जा चुके हैं, सिवियर में आ चुकी है. ये पूरी इंडिया की है. पूरी इंडिया की. ओके. हम इस पे माइक्रो में जा सकते हैं, मैक्रो लेवल बोल रहा हूँ. यूएस में इट इज 7.7. अच्छा. ओके. कनाडा में इट इज 5.5. ओके. क्योंकि यू नो जो 5.5, तो ये ऑल, अब एक्सपर्ट्स हैव स्टार्टेड साउंडिंग द अलार्म बेल्स कि अगेन दिस इज द सिचुएशन. दुबई का कोई आइडिया? दुबई का आइडिया नहीं है, बिकॉज दुबई इज वेरी डिफरेंट एनिमल. वहाँ दुबई में लोकल रेजिडेंट्स तो घर खरीद ही नहीं रहे. सब ग्लोबली पीपल आर. बट दुबई में भी मेरे कई फ्रेंड्स ने, कई जो इन्वेस्टर्स में जानते हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी ली है. एग्जिट्स, बिल्डर का न्यू लॉन्च बिक जाता है, लेकिन एक मेरा दोस्त इन्वेस्टर ने 6-7 लिए हुए हैं, उसका एक भी एग्जिट नहीं हो रहा. न्यू लॉन्च आती है तो वो बिक जाते हैं, लेकिन बेच नहीं पा रहा है. देयर इज अ प्रॉब्लम. ये बिगनिंग ऑफ अ प्रॉब्लम होता है. फंडामेंटली तो रॉन्ग है ना कि अब न्यू लॉन्चेस सारे बिक रहे हैं, लेकिन वो 6-7 कह रहे हैं रीसेल है, वो मेरा एक भी नहीं कह रहा निकल पा रहा. सो अब ये रेशो इज गॉट स्क्यूड.
वर्ल्ड ओवर एक्सपर्ट्स आर अगर आप यूट्यूब में कहीं जाएं तो ग्लोबली आप देखेंगे कैनेडियन एक्सपर्ट्स, अमेरिकन एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कि नाउ दिस इज वी आर इन बबल टेरिटरी ग्लोबली। सी हर बबल का एक ट्रिगर होता है। इस बार ये जो सी एंड बबल से कोई डरने की बात नहीं है। हमारी रियल एस्टेट साइकिल का नेचर ही ऐसा है कि क्या आता है बबल? बुल फेस which will eventually leads to bubble because of leveraged buying. रैशनल पीक तो नहीं बनेगी, irrational पीक बनेगी, वो ऊपर ही जाएगा, एक्स्ट्रा सप्लाई आएगी, तो irrational सिचुएशन आएगी। उसके बाद 20-25-30% प्राइस को करेक्ट होगी irrational पीक से, है ना। उसके बाद 5-6 साल स्टैग्नेट करेगी, फिर वो जो मैंने कहा शूट्स ऑफ रिवाइवल विल कम एंड अगेन द साइकिल। तो मैं उसके बारे में भी आपको बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स दूंगा। इवेंचुअली फ्लैट लाइन कैसे होती है, एवरीथिंग कम्स टू दैट फ्लैट लाइन। तो इस बार ये बुल रन क्यों आया मार्केट में? एवरी टाइम देयर वाज अ स्ट्रगल, यू नो, कॉज ऑफ द रैली, एवरी टाइम देयर इज अ कॉज। हम इस बार की बात करेंगे। सी जब कोविड डेज में मैं अपने स्टडी में बैठा हुआ था, आई वाज डूइंग स्टॉक ट्रेडिंग, वही काम था तब। बहुत लोगों ने डीमैट अकाउंट खोला क्योंकि दे सिटिंग एट होम। तो मैं ना टीवी में साथ साथ एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, बड़ी अच्छी अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री थी, मैं वो देख रहा था। सो दिस गाय सेड a very interesting thing which really made a lot of sense to me. इससे वर्ल्ड में जब भी क्राइसिस आए हैं, लाइक कोविड, whether it's the world war or the Lehman Brothers का जो बस्ट हुआ था, इसको the Lehman crisis, but it's a subprime crisis. तो हर क्राइसिस के बाद बबल फॉर एसेट बबल बना है। क्यों? कोविड में क्या हुआ, उसने काफी पुराने एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी बना था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी बना था। तो ही गेव ही देन कमिंग टू व्हाट हैपेंड इन कोविड, कई फैक्टर्स हुए, इमोशनल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट उसका। कोविड के बाद ग्लोबल गवर्नमेंट्स गिव ह्यूज फिस्कल स्टिमुलाई टू देयर इकोनॉमीज, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स was given globally, was printed and given out. Indian government pumped a lot of money, इकोनॉमी चलती रहे, इकोनॉमी का फ्यूल चलता रहे। अमेरिका ने तो बहुत डॉलर, ट्रिलियंस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत दिया, दुबई ने बहुत दिया। दूसरा सेकंड थिंग वाज फिस्कल स्टिमुलस प्लस क्वांटिटेटिव ईजिंग। इंटरेस्ट रेट्स को यूएस ट्रेजरी तो वर्चुअली जीरो ही कर दिया था। यूरोप में, यूएस में, जापान में, इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स बिकेम वेरी अट्रैक्टिव। इट वाज वेरी अट्रैक्टिव, नॉट इजी, कन्वीनियंट टू बोरो मनी, बैंक्स, इंस्टीट्यूट। सो अब ये होता है आजकल की इकोनॉमी में, द मनी सप्लाई इज टोटली, इट परकोलेट्स एनीवेयर, कहीं भी चले जाती है। अब यूएस में हर हाउस होल्ड को फिस्कल स्टिमुलाई का चेक मिल रहा है, तो उनके पेंशन फंड्स में जाएगा और कुछ उनके वैनगार्ड और ब्लैक रॉक जाएगा। वो अब इंडिया में स्टार्टअप्स को फंड करेंगे, इंडिया में होटल्स बनेंगे, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट होगी। सो आजकल फाइनेंशियल ग्लोबली इंटीग्रेटेड है, कहीं नहीं चले जाता पैसे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स गेट प्रिंटेड इन यूएस, बट इंडिया में भी वो बेनिफिट करता है। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग, तो उसने कहा कि एवरी टाइम क्राइसिस हैज हैपेंड, गवर्नमेंट्स हैव टू रिसॉर्ट टू दिस थिंग, इट क्रिएट्स एसेट बबल। तो मैंने अपने दोस्तों को मुझे स्ट्राइक किया, मैंने कहा यार बहुत प्रॉपर्टी लेने की चाहिए। तब उसका लॉजिकल था, मैंने कहा एसेट प्रॉपर्टी लेने का बहुत सॉलिड नॉलेज है, आई एम टोटली कन्विंस्ड। स्टॉक मार्केट, गोल्ड, ये सारे एसेट्स में अब ये बिग टाइम ऊपर जाएंगे। एंड आई एक्साइटेडली रोट टू माई क्लासमेट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे, मुझे सेंस, और मुझे बिल्कुल बात जेन्युइन लगी। सो दिस वाज वन कारण एंड वी सीन द रिजल्ट्स, एंड ग्लोबली वर्ल्ड एक्सपर्ट्स आर सेइंग दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। सेकंड वाज इमोशनल, पर्टिकुलरली रेजिडेंशियल में तो ऐसा हुआ कि सबको घर छोटे लगने लगे। वर्क से अब हाइब्रिड कल्चर, वर्क कल्चर बिकेम, इंडिया में भी बहुत है। आई सीन सो मेनी फ्रेंड्स, एवरी सेकंड पर्सन आई मीट बोलते हम हफ्ते में 3 बार ऑफिस जाते हैं, बाकी घर में ही करते हैं, कुछ देर के लिए जाते हैं। Many people working for multinationals, particularly, they're working from home. US may be hybrid work culture. Although companies are calling back people, but they're realizing कि यार शुरू में था कि no enough, come back to office. But they're realizing कि यार थोड़ा और सही ठीक है, वो ठीक है, everybody is happy and हमारे खर्चे भी कम हैं। तो then that was a time when people thought कि यार any time calamity can strike me. जब ऐसा होता है तो आप सबसे बड़ा सेफ्टी नेट अपनी फैमिली के लिए करते हो कि let me buy home. If everything goes wrong and I have a home, good home, तो my family ship is stable. और दूसरा सबको थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए थी कि घर से काम करना है, सब करना है। दूसरा एक फैमिली सोच, अब किराए पे मैं रह रहा हूँ,
ऐसा कोविड आ गया, कोई फैमिली का ब्रेड अर्नर मर गया, तो फैमिली इज इन डोल ड्रम्स। तो बहुत लोगों ने घर को थोड़ा प्रीमियम प्रायोरिटी दे दी। पैसा मार्केट में बहुत था। अब जब पैसा आता है तो ये पैसा इंडियन इकोनॉमी भी पंप करते हैं। कितने स्टार्टअप्स आए, कितना पैसा डाला, सबने एक्सपेंशन किया, हायरिंग करी। सो दैट वाज सेकंड फैक्टर ये बुल रन को ट्रिगर करने के लिए। एंड ऑब्वियसली आफ्टर द क्रैश ऑफ 2013 मार्केट हैड बीन स्टैग्नेटिंग फॉर For 7-8 years. तब अगेन दोज इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी थोड़े हाँ, फेवरेबल हो गए। फेवरेबल हो गए। क्योंकि अब लोग कई बार कहते हैं, आजकल यूट्यूब पे बड़े इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, वो घबराए लोगों को थोड़ा बोल रहे हैं कि नहीं करेक्शन कभी नहीं होती प्राइस में, हाँ। बस टाइम करेक्शन होती है, हाँ, प्राइस तो कभी नहीं गिरता। दे वांट टू ईज सूद द नर्व्स ऑफ इन्वेस्टर्स कि प्राइस नहीं गिरता, बस टाइम करेक्शन होगी, घबराओ मत। आप 2013 की रैली जो बम हुआ था उस पर देखें, Golf Course Extension Road पे I sold Grand Arch for 14,000, Victory Valley for 13, Gall Street was selling at a particular price, Maraya was selling at 14.5। एक ही माइक्रो मार्केट एग्जांपल था, ये सारे 9 पे आ गए थे। 9, 9.5, 10। तो अभी करेक्शन नहीं था तो क्या था? उसको genuinely when you're in the midst of that phase when the price is 13, 14, genuinely आपको लगता नहीं है कोई लॉजिक कि ये गिर सकते हैं, and you genuinely start believing कि ये सब कुछ ठीक है। लेकिन वो ऐसी अप्रिसिएशन सस्टेन नहीं हो सकती, क्योंकि 2 ही साल पहले मैंने ग्रैंड आर्च को 4,500 में भी बेचा था, 6,000 में भी बेचा था मैंने। 6,000 से जब 14 हो गया था, मुझे लगा मैं इसमें बर्थ राइट की वो 14 की रहेगा। लेकिन मार्केट वो सीधा कान पकड़ के नीचे उतार देती है, है ना? वो अब 6 से तो वो ये वाली जो बुल रन हुई फिर 2021 से, अगेन दैट स्टोरी जो मैंने बताया फिनोमेना दैट प्लेड इटसेल्फ, और फिर से ही आप देख लो फिर 30,000 हो गया। अगेन वो चीजें जो 9 थी वो ठक 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 करके कहाँ, यू नो द प्राइसेस डबल्ड एंड ट्रिपल्ड एंड व्हाटएवर। सो अब पुरानी हिस्ट्री को देख लें, सी ईच टाइम वी ट्राई टू जस्टिफाई, दिस टाइम द फंडामेंटल्स आर डिफरेंट। इस बार वो पहले वाली बात नहीं, अलग है, लेकिन लॉजिक इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। इसमें मेरा मैं आपको एक पैरामीटर बिफोर यू आस्क क्वेश्चन दूंगा कि उससे लोगों का ना थोड़ा पर्सपेक्टिव ठीक सेट होगा। व्हेन यू आर इन द मिस्ट ऑफ अ बुल रन, आपका पर्सपेक्टिव सारा हिल जाता है, मेरे एक्सपेक्टेशंस गेट टोटली स्क्यूड कि ये लॉटरी का टिकट है, इसमें तो इसमें बढ़ना ही बढ़ना है, प्रॉपर्टी में तो बढ़ना ही बढ़ना है। प्रॉपर्टी ले लो तो आप तो जरूर रिच हो जाओगे, उसमें तो बढ़ना ही बढ़ना है, प्रॉपर्टी गिर नहीं सकती, 2 साल बढ़ेगी नहीं तो क्या। सारे जो करंट नैरेटिव से ही आपका पर्सपेक्टिव बनता है ना? तो यंग बच्चे चैनल पार्टनर्स बने हुए, नए रियल एस्टेट कंपनी में प्रोफेशनल्स हैं, तो वो, और कई लोगों को तो पता होता है फिर भी वो बोलेंगे ही ना, वो तो बेचना है। अगर आपको राइट पर्सपेक्टिव में दूं तो ये रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक लेट्स से केस स्टडी लेते हैं ग्रैंड आर्च की। आज से 15 साल पहले मैंने उसको बेचा 6,000 रुपये फुट में, आज 24 है इसका रेट, 30 के आसपास है। ग्रैंड आर्च 30 का हो गया, 30 हो गया, ठीक, 29-30 हो गया। तो अगर मैंने 6 का 29 हो गया है, लेट्स से 28 to 30 है डिफरेंट, तो अगर मैं इसको 15 साल पहले मैंने 6 का बेचा था, आज 29 4.5 टाइम्स हो गया। तो अगर मैं इसको कंपाउंड करूं तो ये जो कंपाउंडिंग हुई है, दिस इज ओनली 10.25%। तो इसने आपको कोई रॉकेट साइंस रिटर्न नहीं दिए। 6,000 की चीज अगर 28 की, 26 की, 28 की, जितनी की भी हो गई है, मैंने 24 पकड़ा था तो मैंने कैलकुलेशन करी थी तो 9.25% आ रहा था, 10.2 हो गया, अब ये 10.2 हो गया होगा। तो आपको रिटर्न मिली है 10% मिली है अक्रॉस। जब आपने 6 का लिया था, अब देखो 2 साल बाद, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक फाइनर पॉइंट छुपा है। 2 साल बाद अगर किसी ने 13 में लिया था तो फिर वो 14 में लिया था, मैंने अपने किसी बड़े क्लोज को 14 में बेचा, तो फिर वो 8 भी नहीं, उसकी रिटर्न 5.25% है। मतलब उसने 2 साल बाद जब 14 का लिया तो उसने आज तक 13 साल में 5% का कंपाउंडिंग कमाया, कुछ नहीं कमाया। और अब ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ये कहते हैं कंपाउंडिंग इज द 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड। तो आप जब कंपाउंडिंग के बाद का फिगर सुनते हो तो यू गेट वेरी स्टार्टल्ड, लेकिन आप देखते हो उसके पीछे कितना रीजनेबल इंटरेस्ट काम कर रहा है। तो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन इन स्पाइट ऑफ आपने, तो इससे एक बड़ा फाइनल पॉइंट आपको पता लगा है कि
गुड मनी इज मेड, बिग मनी। तो एक्चुअली अगर किसी ने 10% कमाए 6,000 से लेके आपके 28,000 तक, 10.25%, तो उसने कोई बहुत ज्यादा तो नहीं कमाया। इट्स अ वेरी रीजनेबल थिंग कि इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बीट किया उसने, बिल्कुल। कोई रॉक, और वो ऐसी सिटी में जहां अल्ट्रा सुपर ग्रोथ हुई है। इट वाज अ सिटी व्हिच वाज जस्ट अबाउट बिकमिंग लिवेबल देन। राइट नाउ इट्स अ प्रेफर्ड चॉइस ओवर मेनी दिल्ली कॉलोनीज, मोस्ट दिल्ली कॉलोनीज। इसने एक्सेप्शनल सिचुएशन में भी 10.25% का ही कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, लेकिन जिन बेचारों ने 2 साल बाद खरीदा उनको 5.25 मिला। तो इसमें एक फाइनल पॉइंट छुपा है कि द रियल मनी इज मेड व्हेन पीक से मार्केट 20-30% गिर जाए और गिरने के बाद 5-7% स्टैग्नेट कर जाए और आप देख रहे हो कि शूट्स ऑफ रिकवरी आ रहे हैं। दैट इज द राइट टाइम। दैट इज द राइट टाइम। तो जिसने 6,000 में खरीदा, उसको इससे पहले भी एक मार्केट क्रैश था। हाँ, उससे पहले जो 2000 8 वाला था, 8 के बाद जब रिकवरी शुरू हुई 8 से 11 तक ये 12 हाँ। तक ये चला था, जब ये कैनाज में था 3-4 साल बड़ा डाउन था। तो दैट गाय made the best money। is the best money। क्योंकि अब उसमें भी आप देखो कि जब दैट गाय is the best money, लेकिन उससे ज्यादा भी कमाया। आई वाज नॉट सेइंग कि जब तब खरीदा। अब 2020 में आफ्टर 7 years ऑफ स्टैग्नेशन जिसने 9,000 में एंट्री करी, उसने सबसे ज्यादा बना, उसने 9 का 27-28 कर लिया। तो उसका 3 टाइम्स हो गया। फिर से मैं भी इतना लकी हूँ, मैंने भी एक पहिने रहा में 9,500 उसका कंपाउंडिंग से करीब 35% हो गया। उसका कंपाउंडिंग इज मैसिव। हाँ, 35-40%। हाँ, तो यही एक स्वीट स्पॉट है हाँ। ना, कि व्हेन स्टॉक मार्केट में भी यू मेक सच बिग मनी व्हेन नोबडी इज बाइंग, थिंग्स आर रिटन ऑफ। इस 2000 आपका 2020 2000 तक 20 तक 21 तक कॉन्डो मार्केट वाज रिटन ऑफ। हाँ, टोटली रिटन ऑफ। अब पायनियर आ रहा है, लोग यहाँ कमर्शियल खरीदते थे, एक यूनिट बेचते थे, रिक्वेस्ट कर करके हाथ जोड़ जोड़ के 9,500 रुपए फुट में बेचते थे। सो दैट इज द टाइम टू, इफ यू एंटर, तो देखो मार्केट ने इवेंचुअली आपको 10-11% की कंपाउंडिंग देनी ही। अगेन वो रॉकेट साइंस नहीं हुआ है। हाँ। तो मैंने वो आपको कहा ना कि जिसने 6,000 में लिया था और जिसका अभी 28,000 हुआ है, उसको 10.25% ही मिले। हाँ। लेकिन इसने तो 10.25, जिसने ये 5 साल पहले 9 में लिया, 3 साल, हाँ, 35% मिले। 4 साल पहले लिया, 3 साल पहले लिया, उसको 35 मिले। तो ये हर 12 साल की विंडो में, 15 साल की विंडो में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल ऐसे आते हैं when the real money is to be made। हर स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद that's the time the real money is to be made। अब इसमें तो अभी उसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा कि लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी विल ओनली बीट इन्फ्लेशन बाय 2-3 पॉइंट्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स व्हेन यू एंटर। तो जैसे मैंने प्लॉट लिया था आज से 30 साल पहले 10,000 रुपए गज में, आज 3 लाख है उस जगह पे। तो बहुत सॉलिड लगता है कि यार 30 टाइम्स हो गया, दिस इज नथिंग लाइक इट। ये तो, लेकिन आप देखो ये कंपाउंडिंग मेरी बोलो कितनी हुई है, 12% 12.23% मेरी कंपाउंडिंग हुई है। अगर ये कंपाउंडिंग अब 12.3% पे कंपाउंडिंग हुई, मेरा 10,000 रुपए स्क्वायर यार्ड का 3 लाख हो गया है। लेकिन मैं कंपाउंडिंग तभी कहते हैं ना, मैजिकल थिंग, लेकिन आप शेयर क्वांटम सुनोगे तो यूल गेट ज़ॉम्ड। हाँ, कि 30 टाइम्स। अमीर बनने का यही तरीका है। लेकिन 12% तो आप बहुत जगह कमा सकते हो। आई विल नॉट गेट इनटू इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स एंड आर्बिट्राज फंड्स, वो टॉपिक नहीं है, लेकिन ऑल दोज एरियाज यू कैन अर्न मच बेटर। अगर ये कंपाउंडिंग मेरी 15% पे होती तो आपको पता है 6,60,000 का होता। कंपाउंडिंग का जादू देखो, जादू है। 12.23% पे 10,000 की चीज मेरी 3 लाख की हुई, लेकिन अगर ये 15% हो जाता तो ये 6 लाख, 6.5 लाख, 6.5 लाख होता। अब हैविंग सेड दैट, यू नो, तो हमने इंडिया में अभी तक ये लिटरेसी नहीं थी अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अबाउट म्यूचुअल फंड्स। लेकिन अब जब लिटरेसी आ गई है, मेनी वेरी रैशनल पीपल आर पुटिंग मेजर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इनटू these instruments। अब एक अच्छे, even a large cap fund over a period of 15 years has given more than 15% compounding। small caps and mid caps के जो funds हैं उन्होंने तो और भी ज्यादा दिया। आपका एक अच्छा आर्बिट्राज फंड ही 7% दे देता है, which beats the guy who bought Grand Arch probably।
So ये सारे ये फैक्टर्स अल्टीमेटली रियल एस्टेट विल ओनली इन द लॉन्ग रन. आप रियल एस्टेट की पूरी साइकिल देखो, बीट इन्फ्लेशन बाय 2-3 पॉइंट्स, बट नॉट ऑलवेज. मैं आपको बड़ी सरप्राइजिंग चीज बताऊंगा. तो आपको ना किस साइकिल के किस पार्ट में एंटर करना है मेक्स द की टू हाउ मच यू वांट टू अर्न. अभी एक राइट टाइम है कि नहीं? आंसर विल बी वेरी ऑब्वियस टू यू. इज इट द राइट टाइम टू हैव दैट काइंड ऑफ अर्निंग? इट इज नॉट. नहीं, अभी इसमें मेरे दो मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा बिफोर देन यू गेट द होल पिक्चर. सी, गुड़गांव स्टोरी वाज अ यूनिक स्टोरी. यस. So it beat the inflation by 2-3 points वगैरह सब everything. But if you go to Delhi, दिल्ली में वसंत, अभी आपके बिल्कुल ठीक बात है कि 2010-11 में मार्केट पीक पे थी, 11 पे पीक थी, 13 तक पीक हो गया. फिर वो मार्केट थोड़ी गिरी, वसंत विहार ये सारे अपने डिफेंस कॉलोनी गिरी, और उसके बाद ये 2021 तक बिल्कुल नहीं बढ़ी. और 1 रुपया नहीं बढ़ा था उस मार्केट में. ऐसी की ऐसी थी, प्रॉपर्टी प्राइस गिर गए थे. अगर आप 2010 का वसंत विहार के प्लॉट्स का रेट, मैंने पूरी कैलकुलेशन करी, और बिल्डर फ्लोर के रेट देखो और आज के देखो, कंपाउंडिंग इज लेस देन 5%. आपने मतलब 4-5% की से ज्यादा कमाया नहीं है पर एनम. गुड़गांव स्टोरी बिकॉज वो एक नया जन्म था गुड़गांव का. वो तो एक फ्रॉम अ सबर्ब, जो जब हम 15 साल पहले भी लोगों को बड़ा बोलते थे कि ना गुड़गांव इज द फ्यूचर, लिवेबिलिटी इज गोइंग टू बी मच बेटर देयर, कॉन्डो लाइफ इज मच बेटर देन दोस फ्लोर्स लाइफ. आज तो ये गिवन फैक्ट है. अब आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती किसी के. तो ये जो कॉन्डो का जो आपका ओएसिस है, दैट ओएसिस इज वर्ल्ड क्लास. हाँ, बेस्ट हो चुका है. सो अल्टीमेटली रियल एस्टेट साइकिल्स ऐसे इन अ सैचुरेटेड मार्केट सच एज इवन साउथ दिल्ली, डिप्रिसिएशन ओवर 15 years. अभी मगर जिसने अगेन 3-4 साल में खरीदे उनको 30-40% डिप्रिसिएशन मिली है. वसंत विहार वगैरह बिल्कुल मिली है, एकदम जंप आया. इसी अगर आप 2010 से करो तो कंपाउंडिंग इन अ सैचुरेटेड मार्केट you can barely beat the inflation. In a happening city, the नई city है, you can beat the inflation by a few percentage points. So अब अभी के पर्सपेक्टिव में जो नैरेटिव लोग सुन रहे हैं उनको लगता है ये सोने की खान है, इसमें जो हाथ डालेगा वो बहुत पैसा है इसमें. लेकिन लॉन्ग टर्म, अब मीन रिवर्शन कहते हैं ना, अब मीन सारी चीज घूम फिर के वो मीन पे आ जाती है कि आपकी एप्रिसिएशन अल्टीमेट कंपाउंडिंग इसी रेट से होनी है. अब गुड़गांव में फ्यूचर में जो हमने 15 साल में एप्रिसिएशन देखी है, फ्यूचर के 15 साल में वो नहीं होगी. दैट्स व्हाई आई गिव यू द दिल्ली एग्जांपल. नाउ इट इज अ मच मोर मैच्योर मार्केट. अब इसमें वो वाली आपको 11-12% वाली कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी आपको मे बी दिल्ली वाली. एंड वी आर, आई फील, जेन्युइनली फील वी आर एट अ स्टेज, हम उसके डिटेल में बाद में जाएंगे, बट आई जेन्युइनली फील वी आर एट दैट स्टेज इन द मार्केट वेयर we are going to pause at this level, and there will be correction. Correction market में is very obvious. People are giving various narratives. कुछ बोल रहे हैं क्रैश हो गया, कुछ बोल रहे हैं टाइम करेक्शन होगी, कुछ बोल रही है तो और भी ऊपर जाएगी, and all kind of instances. बट ये फैक्ट है कि प्राइजेस एक वॉल को हिट कर गए हैं. अब वो इससे ऊपर 8.8 का जब अफोर्डेबिलिटी, डिमांड सप्लाई कुछ भी हो, मैं मानता हूँ गुड़गांव में बहुत डिमांड है, मिडिल क्लास इकोनॉमी इज ग्रोइंग, मिडिल क्लास बढ़ रही है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी अल्टीमेटली जो फाइनल डिनोमिनेटर होता है दैट्स अफोर्डेबिलिटी. पीपल शुड बी एबल टू अफोर्ड इट. अब प्राइस दो तरीके से बढ़े हैं विपिन पिछले 4-5 साल में. मैंने तो पूरी 35 साल की जर्नी देखी है. एक तो प्राइस बढ़ा है, दूसरा सुपर एरिया को ऐसा स्क्वीज करा है कि आई डोंट नो व्हाट रेरा इज डूइंग. पहले अगर आप पुराना 15 साल पुराना कॉन्डो देखो, उसका हम बेंचमार्किंग करते हैं कि यहाँ रेट 75-80% तक एफिशिएंसी होती थी. आज की डेट में शर्मा शर्मी से वो 50 से ऊपर करते हैं. 50 सुनने में बुरा लगता है, 55-58 नहीं है. मैंने नक्शे खुद नापे हुए हैं बहुत सारे, वो 52 हैं. आप एग्जैक्टली नापो, डालकनी को मत लो, वॉल सा 52-53% से नई लॉन्चेस में नहीं है. 52-53 कि 50 थोड़ा बुरा लगता है तो थोड़ा सा ऊपर दे दो. एंड इट्स टोटली एड हॉक. अब लोग डिफेंड इसका करते हैं कि भाई हम एमिनिटीज ज्यादा देने, लेकिन हम एमिनिटीज के लिए 2 बार नहीं चार्ज कर सकते. एमिनिटीज ज्यादा दे रहे हो, आपने रेट हाई करा हुआ है. हाँ. प्लस आप कह रहे हो एमिनिटीज ज्यादा दे रहे हैं तो सुपर एरिया पे ज्यादा है. हाँ. एक ही चीज के लिए डबल चार्ज कर रहे हो. हाँ. तो प्राइसेस आर एट अ लेवल व्हिच विल डेफिनेटली. सो देखो अभी करेक्शन थोड़ी पोस्टपोन चल रही है, होगी. व्हेन डज अ करेक्शन हैपन? प्राइस 10-20% गिरते हैं जब व्हेन देयर इज फोर्स सेलिंग.
फोर्स सेलिंग की भाई मेरे पास पैसे नहीं है मुझे तो बेच नहीं, तो फोर्स सेलिंग की सिचुएशन अभी आई नहीं है, आई नहीं है। यू नो, बिकॉज द दिस टाइम अराउंड डेवलपर्स को थोड़ा लगने लगा था यार कि थोड़ा सा डेंजर हो रहा है, और इन्वेस्ट जब देखो जो एंड यूजर होता है वो तो कंजम्पशन पेमेंट प्लान दे देगा, प्राइस विल, अगर वो अफोर्डेबिलिटी रेंज में आ रहा है, मीडियन इनकम के 3-4% तक है, वो देगा, उसको घर लेना है यार। लेकिन अभी जब आप इन्वेस्टर को चीज दे रहे थे तो इन्वेस्टर थोड़ा घबरा रहा था, तो डेवलपर्स ऑल से यार कि इसको करो 30-30-40, हाँ वो पिच बड़ी स्ट्रांग बन गई कि 30 के बाद तो सर 4 साल तक स्ट्रक्चर आना ही नहीं है। हाँ सो नाउ द फोर्स सेलिंग फिनोमेना हैज बीन पुश्ड बैक, पोस्टपोन हो गया। जब वो अगला 30 आएगा। हाँ, तो अभी टिपिकल है कि एक कोटेड रीसेल प्राइसेस, हर जगह एक कोटेड रीसेल प्राइसेस हैं। कोटेड रीसेल प्राइसेस पे मैं नहीं कह रहा कि ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, कई जगह हो भी रही है, वो भी नहीं है। ठीक है, मार्केट में हर टाइप का इन्वेस्टर होता है, किसी को कोई इतना सैबी है, कोई बुलिश है, कोई थोड़ा कंजर्वेटिव है, कोई बहुत बुलिश है, लेकिन रीसेल हो भी रही है। लेकिन वो रीसेल इतनी नहीं हो रही इन कमेंसरेट विच इज प्रोपोर्शनेट टू द इन्वेंट्री इन द मार्केट। जो इन्वेंट्री ओवरहैंग है मार्केट में, उससे प्रोपोर्शनेट वो नंबर ऑफ रीसेल नहीं हो रही है। तो ऑल दीज, तो जब ये फोर्स, थोड़ी सी फोर्स सेलिंग होगी, जब वो थोड़ा पेमेंट का नेक्स्ट क्राइसिस आएगा तो फोर्स सेलिंग होगी, तो जो इसी द हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। मैंने कहा ना, इट्स अ साइंटिफिक फॉर्मूला कि वो प्राइसेस, वो जो प्राइस इन द लॉन्ग टर्म, मैंने बताया ना सारी स्टोरी ऐसे फाइनेंशियली मीन की तरह रिवर्ट करता है, तो वो करेक्शन तो जरूर आएगी। क्योंकि मैं सिंस आई हैव अ रिंग साइड व्यू, मैं पर्सनली बताऊं, मैं बहुत डर जाता हूं जब मैं सुनता हूं ना ये ग्रुप हाउसिंग लॉन्च किया, रात के 3 बजे से लाइन लग रही थी और वो पहले दिन सोल्ड आउट हो गया, मैं खुश नहीं होता, मैं बहुत डर जाता हूँ। दिस इज नॉट सेंसिबल, दिस इज नॉट सेंसिबल। 5-5 करोड़ के घर के लिए लोग रात के 3 बजे लाइन पे लग रहे हैं, एक दिन में 16, ऐसी सेल से तो मुझे बहुत घबराहट है। मैं, और ऐसी सेल कोई भी कर सकता है। सी यू हैव टू डील विद अ सर्टेन टाइप ऑफ चैनल पार्टनर्स, वो आपका सारा माल काट देंगे, वो घर नहीं बेचेंगे माल काट दी, घर नहीं बेचेंगे, माल काट देंगे। प्रोमोटर्स का चल के माल काट दो, इतने तुमने उठाए, मैंने इतने उठाए। मेरे पास भी एक ऐसे माल काटने वाले, भाई हमें तो सर अभी रिसेंट की बात है, 200 से कम नहीं लूंगा मैं यूनिट, 200 से कम नहीं लूंगा, उससे कम तो पूरा कंसोर्टियम है हमारा। मैंने बातचीत करी, बड़ा सॉलिड कंसोर्टियम है, और सारे करते हैं कि हमें तो ये करने, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हम, ये हैं वो हैं, ये वो हैं। मैं पूछो भाई आपके इन्वेस्टर बायर कौन है, मतलब क्या, सर आप फिक्र मत करो 30% दिला देंगे। भाई 30% दिला देंगे, फिक्र ना करूं, मैं बहुत फिक्र कर रहा मुझे पूरे पैसे थे। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कौन है, मतलब कौन है, वो द्वारका साइड से थे, कहते ये जो द्वारका की सोसाइटीज में रहते हैं ना, ये सारे हमारे इन्वेस्टर है। मैं बोला ये 5-5-6-6 करोड़ के घर, तुम्हें 200 चाहिए, और जो खुद 3-2 करोड़ के घर में रहते हैं, दोज गाइज आर योर इन्वेस्टर। सो मार्केट में अब परसेंटेज ऑफ सच बायर्स इज सिग्निफिकेंट। जो एक विशाल भार्गव की यूट्यूब वीडियो आई थी, क्रिकेट फाइटर सर, वो झूठ नहीं बोल रहा था। वी ऑल नो दैट वेरी हेल्दी परसेंटेज, सॉलिड परसेंटेज इज दीज काइंड ऑफ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स की टर्म यूज करी थी, और जो इन्वेस्टर्स हु ओनली बुक्ड ऑन द गारंटी ऑफ अ अंडरराइटर और अ ब्रोकर, उसकी गारंटी पे। सो ये रेशो एक तो काफी सिग्निफिकेंट है ये रेशो, क्योंकि मैंने रेशो की आप बात कर रहे थे कि जब ये रेशो आ जाती है दैट इज डेंजरस। सबसे पहले मैंने अफोर्डेबिलिटी की रेशो बोली, वो खराब हो गई। उसके बाद ये वाली रेशो, दूसरी रेशो पंटर्स। मैंने कहा ना, मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ कि जब ये सेल गैलरी में मेला लगा है, पार्किंग नहीं मिल रही है, वो चीयर लीडर्स डांस कर रही हैं, हर बुकिंग के चेक के साथ उसको आईफोन दे रहे हैं, ये घर कैसे घर बेच रहे हैं, वो लकी ड्रॉ हो रहा है, उसको व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो रहा है, उसको व्हील ऑफ फॉर्च्यून में किसी का वो कुछ फोन निकला है, फोटो खींच रहे हैं, इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं, वो चीयर लीडर्स डांस कर रही हैं, और गैलरी में दिखा, मैंने तो ऐसी ही देखी वीडियोस की सेल्स टीम घेर के टेबल पे खड़ी हुई है, सारे मेरे 20 चेक, मेरे 30 चेक, उसका वीडियो डाल रहे हैं मार्केट में डेवलपर्स। तो आप खुद ही निमंत्रण देखो, जब आपको बड़ा लगता है कि मैं तो मार्केट, हम जीनियस है, सेलिंग जीनियस है, लेकिन ये जो फेज होता है ना, फ्रॉथी फेज के शुरू की में 1-2 साल, इसमें एवरीबडी थिंक्स दे आर जीनियसेस, कैट विस्कर्स, बट ये these kind of stunts will really come back to, they won't age well. They won't age well. They won't age well, come back to haunt you.
तो ये फैक्टर एक तो बड़ा खराब हो चुका है. अफोर्डेबिलिटी एंड द परसेंटेज ऑफ पंटर्स पंटर हैज इज वेरी बैड. थर्ड इज कि अब दो लोगों ने रियलाइज किया कि अफोर्डेबिलिटी की इक्वेशन तो सबको बॉदर करती है. तो द पिचेस की अल्ट्रा लग्जरी. हाँ. So since this is ultra luxury, then affordability factors don't mean, and ultra luxury will always find very rich people to buy your unit. करेक्ट. भाई अगर अफोर्डेबल खरीद रहा हूँ, मैं रीजनेबल मिडिल क्लास खरीद रहा हूँ, तो मैंने बोला कौन खरीदेगा यार इतना महंगा. ये तो सर लग्जरी है, इसमें ये देखो ये. अमित जी, इसको ना बिल्कुल स्पेसिफिक्स में ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक्स में इसलिए ब्रेक डाउन करेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से हर ऐसे बबल में या हर ऐसे प्राइस करेक्शन में अपॉर्चुनिटीज बड़ी सारी होती हैं. बिकॉज द लग्जरी सेगमेंट हैज मोर प्राइस इलास्टिसिटी. हाँ हाँ. Developer or the channel partner will tell the buyer कि okay, in this segment you will find enough rich people to buy off your property. Affordability ले लो. Affordability is not an issue because जब ये बन जाएगा तो there will be enough people to top. तो देखो, which is correct, बिल्कुल logical चीज है. But let me tell you, many new developers at many locations with such luxury is not viable. And in many segments, even in Deen Dayal और दीन दयाल हाउसिंग में मैंने देखा है कि पीपल आर कमिंग, और ग्रुप हाउसिंग्स में भी कम ऐसी एमिनिटीज को लेके आ रहे हैं विच आर नॉट सस्टेनेबल. वंस द आरडब्ल्यूए टेक्स ओवर, सच एमिनिटीज कांट बी मेंटेन्ड इन अ वेरी फॉर एग्जांपल इन दीन दयाल अगर आप 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब बनाओगे विद फैंसी बार कॉफी शॉप, तो लेट मी टेल यू 1 साल के अंदर 8 करोड़ का जिसने घर लिया होगा वो कैसे चलाएंगे? नहीं सस्टेन होता. आपका मैंने तो जैसे ना रिंग साइड व्यू का एडवांटेज है कि बनने के बाद सबसे पहले 6 महीने में जो बार लाइसेंस होता है आपका, एमआर पाम स्प्रिंग्स ऐसे प्रोजेक्ट में बार लाइसेंस खत्म हो गया. इतने फ्लुएंट लोग रहते हैं. तो ये जो दीन दयाल में इतना बड़ा क्लब बना रहे हो, दिखाते हो कि लेडीज गाउन में बैठ के शैंपेन ड्रिंक कर रही हैं, तो वो होगा नहीं. क्लब वो 6 महीने में बार लाइसेंस रिन्यू, 1 साल में रिन्यू नहीं होगा. उसके बाद वो क्लब का सबसे पहले रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा. और कई बार so amenities have to be in proportion to the segment you are catering to. Yeah. It's just that you saw such a fancy thing because you want to drive the price up. तो ये एक फैक्टर है which is logical, but it has to apply to the right product at the right location. Right location. Sometimes the other architectural features are so unsustainable. For example, एक developer जो उसने अपना प्रोजेक्ट अबैंडन कर दिया है, दे वर मार्केटिंग ग्रुप हाउसिंग विद उनकी पिच थी कि यू डोंट नीड टू गो आफ्टर यू बाय दिस होम. हाँ, बीच बना देंगे हम. पूरी बीच बना रहे थे. वो बच्चों के पार्क, घास नहीं उगा रहे थे, पार्क नहीं बना रहे थे, वो बीच बना रहे थे. वो भी आसपास सारी गुड़गांव में. तो उसमें बताऊं कि जब मौसम होगा वहाँ डेंगू, वो बीच डेंगू के मच्छर काटेंगे लोग. एक्चुअली ये तो प्रैक्टिकल चीज है ना. हमारे अराया में 2 फाउंटेन है. जब वो डेंगू सीजन आता है तो लोग कहते हैं इसको खाली कर दो यार, मच्छर आ गए डेंगू पैर में. उसके बाद इस ऐसी बीच को मेंटेन करना, रेत आपकी गर्मी में जब लू चलेगी वो जल रही होगी, पैर नहीं रख सकोगे. और आरडब्ल्यूए बोलेगा इसको बंद करो. ऐसी रिडिकुलस वाटर बॉडीज, ऐसे आर्किटेक्चरल फीचर जो सस्टेन नहीं हो सकते, ऐसे सुपरलेटिव क्लब्स जो सस्टेन नहीं हो सकते, दे मे बी वेरी गुड टू बिल्ड अ नैरेटिव, इमेजरी एंड कमांड अ प्राइसिंग, बट लॉजिकली ये मेंटेन नहीं हो सकते. आप कितने अच्छे जो पुराने एस्टैब्लिश कॉन्डोज देखो, उसमें फीचर्स अच्छे हैं लेकिन कंजर्वेटिव है. इतना ऐसा नहीं है कि आप उसमें इतने, मैं अभी कोई और एग्जांपल्स नहीं देना चाहता बिकॉज पीपल विल बी एबल टू रिलेट कि कोई किसका प्रोजेक्ट की बात कर रहा है. हाँ. इसका दिया तो ये प्रोजेक्ट ही बंद हो गया, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता. बट लेट मी टेल यू, इसमें एक चीज और छुपी है. टिल द लास्ट डे बिफोर दिस प्रोजेक्ट गॉट स्क्रैप्ड और खत्म, दिवालिया डिक्लेयर कर दिया, लास्ट डे तक इंस्टाग्राम पे तो ये ऐसे दिखा रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है. ये तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं रहा. इंस्टाग्राम में फोटो स्टार परफॉर्मर ऑफ द वीक, ही एक ब्रोकर को ट्रॉफी दे रहे हैं, 100 करोड़ की सेल कर ली है, इसने ट्रॉफी दे रहे हैं. ऑल ऑफ अ सडन पता लगा कि प्रोडक्ट ही खराब हो गया, कि उसके जो 400 यूनिट बिके थे उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ही नहीं आई. तो बिकॉज आई हैव इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, उनकी इंस्टॉलमेंट ही नहीं आई. बट लेट मी टेल यू, ऐसी जब चीज होती है, इट्स द कैनरी इन द कोल माइन. देयर इज अ मच ऐसे एग्जांपल्स आने वाले टाइम में और आएंगे. वो कैश फ्लो जो बन गया है वो आएगा नहीं. सो दिस इज वेयर वी आर. एंड मार्केट में ठीक है,
ongoing thing. These cycles are ongoing thing. Real estate में थोड़ी accentuate हो जाती है because of leveraged by people to excitement levels high हो जाती है, चीज़ correct होती है, फिर होती है. But in the long run, I would say किसी भी अपने इंडियन के लिए एक होम तो जरूरी है. सब there's a rent versus buy debate. Many experts are saying rent करो, buy मत करो. लेकिन लेट मी टेल यू, फैमिली की सिक्योरिटी के लिए अपनी होम जरूरी है. होम जरूरी है. आप कुछ भी अपना खर्चों को श्रिंक कर लो इफ यू ओन द होम, आराम से जियो. आप अपना नेटफ्लिक्स लगाओ, प्राइम टीवी लगाओ, जोमेटो से ऑर्डर करो, अच्छी जिंदगी कंजर्वेटिव बजट में करो. इफ यू गॉट अ होम, टेंशन आपकी कम है. दूसरा, आप हर एसेट क्लास में रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हर एसेट क्लास में साइकिल्स होती हैं. स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाती है, नीचे जाती है, कई बार डेट फंड्स में भी लॉस हो जाता है कई बार. सो आजकल तो आई थिंक द एक्सपर्ट्स की ओपिनियन विच आई सेकंड इज कि किसी भी इंडिविजुअल जो एक HNI है, उसको आई थिंक अपने पोर्टफोलियो में 30 to 40% रियल एस्टेट रखना चाहिए, 10% गोल्ड रखना चाहिए, बाकी इक्विटी एंड डेट रखना चाहिए. स्टिल रियल एस्टेट शुड हैव अ पार्ट ऑफ द बट आप अपना, मैंने आपको जो ये पूरी साइकिल की स्टोरी इसलिए बताई कि अपने हैव योर हेड ओवर योर शोल्डर्स. रियल एस्टेट इज अ लॉन्ग टर्म गेम. देखो, रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जहां आपके बिग अमाउंट्स ऑफ मनी 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ सेफ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं. हाँ. कोई आपने कंपनी का स्टॉक लिया, वो कंपनी फेल होकर बंद भी हो सकती है. आपने कुछ फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री आपकी जीरो हो सकती है. 15 करोड़ लगाया आपकी फैक्ट्री में, आपका दोस्त कर रहा था, आपने स्टेक लगा. रियल एस्टेट जीरो नहीं होगी, वो जीरो नहीं होगा. वो हमेशा आपको इन्फ्लेशन को बीट करके कुछ रिटर्न लॉन्ग टर्म में देते हैं. और कोई आपसे छीन नहीं सकता. वो एक जगह पड़ा हुआ है, आपको रोज स्ट्रेस नहीं दे रहा. अब इस लेकिन वो जो ये मैडनेस वाला है, ये ठीक है. अगर आपको उसको इनकैश करना है, मैंने बताया उसका स्वीट स्पॉट क्या होता है. वो स्वीट स्पॉट इस साइकिल का आके जा चुका है. तो अब उस स्वीट स्पॉट को चेज मत करें. अब अगली बार अपनी बारी की वेट करें. अब आज की डेट में अब मेरे 2-3 क्वेश्चन है आपसे. पहली चीज, जैसे आपने ग्रैंड आर्च का एग्जांपल दिया, एट दैट टाइम 2014 में एक्सटेंशन रोड तो बनी भी नहीं थी और कुछ था ये. हाँ, नहीं, उसके बाद जब डिलीवर हो गया तो एक्सटेंशन रोड में कुछ मजा ही नहीं था कुछ. बट उस समय गोल्फ कोर्स रोड फिर भी प्राइस स्टेबलाइज कर गया. नाउ गिवन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इज डूइंग वेल, ठीक है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं और आबादी बहुत सारी आ गई है, तो ये वाला प्राइस करेक्शन आपको क्या लगता है ये ज्यादा द्वारका एक्सप्रेसवे में आएगा और ये सस्टेन करेगा, या यहाँ पे भी प्राइस करेक्शन होगा किधर? गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में? गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में करेक्शन नहीं होगा. हाँ, मैंने आपको जैसे वसंत विहार का एग्जांपल दिया. वसंत विहार में प्राइसेस पीक पे आने के बाद 2010-11 के बाद गिरे नहीं, रुक गए, स्टैग्नेट करे, क्योंकि वो एक मेच्योर मार्केट. सेम चीज गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन रोड एक बड़ी मेच्योर मार्केट हो चुकी है. वहां कभी इतनी सप्लाई या फोर सेलिंग आएगी नहीं कि प्राइस कम हो. करेक्ट. अगर मैंने अपने कॉन्डो का, अराया का, ग्रैंड आर्च का, विक्ट्री वैली का या किसी हाइंस कॉन्स्टेंट का प्राइस अब सुन चुका हूँ, तो मुझे कोई फोर्स सेलिंग नहीं करती है अभी, क्योंकि मार्केट में इतनी सप्लाई है ही नहीं. और जो लिवेबिलिटी पर्सपेक्टिव से ले रहा है, पहले हम 2010 में लोगों को बड़ी स्ट्रॉन्ग यही कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि हाउ इन द टाइम टू कम गुड़गांव विल बी, लिवेबिलिटी विल बी कंपेयर्ड टू बेटर टू दिल्ली. अब ये चीज सेटल्ड है, दैट्स आर्गुमेंट इज सेटल्ड. सो आजकल तो पर्सनली अगर आप साउथ दिल्ली की कॉलोनियों में जाओ, जो लोग एवरीबडी डोंट सब्सक्राइब टू दैट व्यू. दे स्टिल साउथ दिल्ली वही रहेंगे. अब अपना लॉजिक सब पे तो नहीं चिढ़ते ना. करेक्ट. पीपल से व्हाट. तो लेकिन ये एस्टैब्लिश फैक्ट है, और यहाँ हमेशा प्राइस सेट हो गया है, सप्लाई भी लिमिटेड होगी, ट्रांजैक्शंस भी लिमिटेड होगी, सो ये प्राइस से कम नहीं हो सकता. गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन इज द स्टेबल मार्केट टू गो फॉर, क्योंकि ये साथ, देखो मेरा जैसा कॉन्डो है, ये सारे दूसरे कॉन्डो से एग्जांपल दिया है, ये फुली ऑक्यूपाइड है. इसमें रेंटल एस्टैब्लिश हो चुका है. एक टाइम पे अगर आप अपार्टमेंट ढूंढने जाओ तो आपको ज्यादा इन्वेंटरी मिलती नहीं है. और आपको पता है आज भी, बट बाकी जगह पे मैं बताऊं, जो न्यू लॉन्चेस हैं, अगर आप डेटा देखो, इन्वेंट्री ओवरहैंग अगर हम देखें तो पूरे इंडिया के टॉप मेट्रो सिटीज में, बॉम्बे, नोएडा, हैदराबाद, पुणे, अपना गुड़गांव, ये सब करके इस वक्त आपकी 6 लाख अपार्टमेंट्स कहते हैं कि अनसोल्ड इन्वेंट्री है अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स ऑफ कॉन्डोज में. उसमें से 6 लाख में से आपकी 80-90 हज़ार इस गुड़गांव मार्केट में, दिल्ली मार्केट में,
बॉम्बे में इससे ज्यादा है। अच्छा बॉम्बे में Greater- ज्यादा है, इट्स नॉट बॉम्बे, ग्रेटर बॉम्बे है, ग्रेटर बॉम्बे, हाँ वहाँ 1,80,000 है। हैदराबाद में भी गुड़गांव के बराबर है, 80-90 हज़ार। लेकिन जो आप ये 80, ये जो डेटा है ना 80-90, ये जो आप अभी एनरॉक की लेटेस्ट हाँ, रिपोर्ट हाँ। पढ़ो, 80-90 हज़ार आपके एनसीआर में, 90 हज़ार हैदराबाद में भी 90 हज़ार है, बॉम्बे में 1,80,000 है। तो अब ये जो इन्वेंट्रीज हैं, दीज इन्वेंट्रीज, अब ये जो सर्वे करते हैं ना, इनका सर्वे इस तरीके से सुपरफिशियली होता है। दे आर काउंटिंग मेनी यूनिट्स हैव सोल्ड व्हिच आर नॉट एक्चुअली सोल्ड, व्हिच आर विद ट्रेडर्स। और मैं वो ट्रेडर्स की साइकोलॉजी, ट्रेडर्स को तो खुद देखा होगा ना, कितने हाँ। शैलो हैं वो, मुझे पता है खुद। तो एक्चुअली इन्वेंट्री से ज्यादा है। ज्यादा है। मुझे लगता है कि देखो विपिन, आप देखो कि 2010-11 के बाद 20 तक कितनी ग्रुप हाउसिंग लॉन्च हुई थी और ऑब्जॉर्व हुई थी, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कितने नए प्रोजेक्ट्स आए थे कोई? गोल्फो सोर्ट एक्सटेंशन और मैच्योर मार्केट्स, दे बिहेव लाइक बसंत विहार एंड दिल्ली डिड, सैचुरेट रहेंगे प्राइसेस। और लेकिन यहाँ मैं करेक्शन बिल्कुल करेक्शन नहीं है। सप्लाई इज वेरी लिमिटेड, ट्रांजैक्शंस विल बी लिमिटेड, बट many other micro markets, I do feel कि 2031 तक का जो मास्टर प्लान था, बियॉन्ड तक का आता था भाई, उसके बाद भी तो कुछ लॉन्चेस आने थे ना। तो मुझे लगता है कि आप खुद देख लो कि 10 साल तक कितनी सप्लाई आई थी। जो सप्लाई अभी डंप हुई है मार्केट में पिछले 3 साल में, मुझे लग रहा है कि 10 साल की सप्लाई को 3 साल में डंप कर दिया है। हाँ, आपने खाना अपने अंदर जल्दी से ठूस दिया है, आपको डाइजेशन में टाइम लगे। 7 साल लगे। अब इसमें एक पॉइंट और है, अब मैं प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ जो मैं अभी ट्रेंड देख रहा हूँ। प्लॉट्स एंड लैंड इज स्टिल ग्रोइंग, और वो चाहे गोल्फ कोर्स रोड पे हो, चाहे वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे हो, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेस पे हो, सप्लाई कम है और प्राइसेस अभी भी बढ़ रहा है। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? डिस्पाइट ग्रुप हाउसिंग में लल होगा, बट प्लॉट्स में कोई लल नहीं है। हाँ, प्लॉट्स में बिल्कुल अभी तक लल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि प्लॉट्स भी, मैंने आपको प्लॉट्स की भी स्टोरी बताई, लॉन्ग टर्म में मुझे 12% का रिटर्न मिला है व्हेन गुड़गांव वाज नथिंग कंपेयर टू व्हाट इट इज नाउ। आने वाले टाइम में वो 12% का अमाउंट रिटर्न नहीं मिलेगा। नहीं, मगर हैविंग सेड दैट, प्लॉट्स में इतनी करेक्शन नहीं आएगी, लेकिन प्लॉट्स भी अभी इंटरम पीरियड के लिए, इंटरमीडिएट पीरियड के लिए एक अपनी पीक पे हैं। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर इसको प्लॉट पे सबसे पहले फ्लिपर तो आते ही नहीं है। हाँ, फ्लिपर नहीं आते। दूसरा उसमें एक एडवांटेज है कि वैल्यू ऐड हो सकता है। हाँ, उसमें वैल्यू यू कैन बिल्ड, सो यू कैन बाय द प्लॉट, होल्ड इट। उसमें फ्लिपर्स नहीं है, जो बैड ट्रेडर्स हैं, शैलो ट्रेडर्स की प्रॉब्लम नहीं है, और कोई ऐसी फोर्स सेलिंग की नौबत नहीं आएगी वहाँ। जैसे अपार्टमेंट में आप वैल्यू ऐड Apartment करके नहीं का बेच सकते, हाँ, मगर इसमें आप स्टिल +4 बना के आप बेच सकते हो। सी इफ यू आर बाइंग विद द मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, प्लॉट इज अ गुड बाय। आप शॉर्ट टर्म में मत देखो, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ साल एप्रिसिएशन ना मिले, हाँ, बट लाइक आई सेड कि जो ऑल दोज प्रॉब्लम्स व्हिच हैपन इन द कॉन्डो मार्केट, वो इसमें नहीं होती। मैं बताऊँ, ये जो कॉन्डो मार्केट की आपने मार्केट बिहेवियर के बारे में बात किया, ये इंडिया का फिनोमेना नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। ये वर्ल्ड वाइड है। इस पर आप पता है कि सब हमसे जो एक कदम आगे फ्लिपिंग में वो चाइना। कैनेडियंस है। चाइना का चाइना का तो बहुत बड़ा एग्जांपल है। हाँ। कनाडा में मेरा बेटा पढ़ता है, तो मैं बताऊँ टोरंटो में और वैंकूवर में पिछले 5-6 साल से फ्लिपिंग ऑफ कॉन्डोज इज बिकम द फेवरेट पार्ट टाइप ऑफ कैनेडियंस। वहाँ 10% देते हैं, फिर वो पोसेशन में उनको बाकी देना पड़ता है, बाकी डेवलपर बैंक से लोन ले लेता है। लेकिन अब कनाडा में, वैंकूवर में और टोरंटो में द डेटा इज वेरी डिसमल। प्राइसेस हैव करेक्टेड 20%, 25%। मेनी पीपल, जब उनकी अब पोजीशन आ गई, बैलेंस पैसे देने थे, पीपल आर वहाँ फोरफिट कराना पड़ता है, पीपल आर फोरफिटिंग द 10%, और इन्वेंट्री पाइल अप इज ह्यूज। सो अगेन, तो वो जो बड़ी अट्रैक्टिव चीज होती है, द पावर ऑफ लिवरेज, 10% देके आप कॉन्डो में खेलो, वहाँ तो बहुत ज्यादा वो पहले चीज हो चुकी, जो इंडिया अभी होने वाली है इंडिया में, वो हो कनाडा में अभी हो रही है, मिडिल ऑफ दिस थिंग। अब आ जाओ ऑफिस स्पेस पे। जो हमने पिछले 2 साल 3 साल में ट्रेंड देखा है, ऑफिस स्पेस हैज बिन राइजिंग इन अ वेरी डिफरेंट लीग, और सप्लाई बहुत लो है, स्पेशली गुड़गांव मार्केट में। आज भी अच्छी ए ग्रेड ऑफिस स्पेस मेरे पास एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन में लोग मांगने आते हैं, बट सप्लाई इज लो एंड द प्राइस इज स्टिल राइजिंग। नाउ फाइनली द रेंट्स ऑल्सो हैव स्टार्टेड राइजिंग। उतना ऊपर नहीं गए हैं, बट बढ़ने शुरू हो गए हैं। मतलब एक्सटेंशन में अब बड़े आसानी से 120 रुपए, 115 रुपए में ट्रांजैक्शन हो रही है, क्योंकि बड़े देर से स्टैग्नेट किए थे रेंटल्स को बढ़ना बड़ा। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस मार्केट ऑफिस स्पेस? इसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग के रेंटल्स हैं, दे आल्सो फॉलो देयर ओन लॉजिक डायनामिक। यू आर राइट कि द रेंटल्स हैव स्टैग्नेटेड। फॉर एग्जांपल, गोल्फ कोर्स रोड में 100 के आसपास, एक्सेप्ट फॉर हाइंस,
हॉराइजन सेंटर, 100 के आसपास ये रेंटल 7-8-10 साल स्टैग्नेट थी। स्टैग्नेट थे, हाँ, आप- बड़े ही नहीं। तो बड़े ही नहीं थे वो रेंटल, 10 साल मेरी नज़रों के सामने। मैं तो 35 साल पहले लीजिंग शुरू हुई थी तब से ऑफिस स्पेस को वॉच कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इट वॉज वेरी राइप। मैंने तो लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि आई थिंक दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट बिकॉज द रेंटल्स हैव टू करेक्ट एंड गो अप। कोई डिमांड सप्लाई का ऐसा इक्वेशन चल रहा था, ये रेंटल्स बढ़ नहीं रहे थे। कई डेवलपर्स हाँ, बहुत सारे डिप्लाई आ रही थी और पीपल वर गोइंग टू हैदराबाद, पुणे, अदर सिटीज में भी जा रहे थे। बट यू राइट कि रेंटल्स हैव अ अपवर्ड ट्रैजेक्टरी। पिछले पूरे साल में आपके गुड़गांव मार्केट में, पूरे एनसीआर में 10 मिलियन स्क्वायर फीट लीज हुआ है। 8 मिलियन इज इन गुड़गांव। हाँ बिल्कुल। सो अ गुड बिल्डिंग, एस्टैब्लिश्ड ऑफिस बिल्डिंग इज ऑलवेज अ गुड बाय। उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, डेवलपर कंट्रोल कर रहा है उसकी मैनेजमेंट, और उसकी लोकेशन अच्छी है, तो इट इज़ अ गुड बाय। आई थिंक द रेंटल्स आई हैव अ थोड़ा सा हेडवे और है रेंटल्स के लिए ऊपर जाने के लिए। और आई थिंक इट्स अ स्टेबल। सबसे बड़ी बात है कि जो रेंटल यील्ड है ऐसी बिल्डिंग्स में, कि जब भी क्राइसिस शुरू होता है ना, सम वॉइसेस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स वर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल डेंजर व्हिच इज गोइंग अप। सो नाउ इवन वेरी एमिनेंट पीपल, लेटेस्ट वो विनोद खोसला ने कहा, और सो मेनी एमिनेंट पीपल आप देखते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट जॉब मार्केट डिसरप्शन बिकॉज ऑफ AI, पर्टिकुलरली इंडियाज IT सेक्टर, द सर्विसेज सेक्टर। इंडिया में जो करंट रियल एस्टेट बूम आया है, उसका एक कॉज ये है। तो दिस इज अ फैक्टर टू बी टेकन watched, into account, हाँ, to be watched. But having said that, अगर आपके पास पैसा है और आप अच्छी क्रीम माइक्रो मार्केट्स में, जो एस्टैब्लिश माइक्रो मार्केट्स में, तो वहाँ कोई ऐसा डेंजर नहीं है। बट दिस इज अ फैक्टर व्हिच हैज टू बी क्लोजली वॉच्ड, जॉब बेस्ड। एक और एसेट क्लास इन रियल एस्टेट इज रिटेल मार्केट्स एंड SEOs, shop cum office, this thing. Some of the SEOs markets in Gurgaon have done very well of late, जैसे सेक्टर 42 ने भी किया, और भी अभी एक्सटेंशन में बन रहे हैं, स्पीयर में बन रहे हैं। So what is your take on SEO investments and retail investments? सी देखो, ऑफिस स्पेस में और रेजिडेंशियल में, तो अगर आप बिल्डिंग बहुत अच्छी है या थोड़ी खराब है, तो आपका कैपिटल वैल्यू और रेंटल में थोड़ी फ्लक्चुएशन हो जाएंगी। बट रिटेल में इट्स ऑल और नथिंग एट ऑल। All or nothing. रिटेल कॉम्प्लेक्स चल गया तो वो सुपर हिट है, रेंटल्स आए हैं, कैपिटल। वो रिटेल सेंटर नहीं चल रहा है, तो वो एक नो मैंस लैंड में फंस चुका है, कुछ भी नहीं हो सकता फिर। सो द सैड पार्ट इज कि यू नो, अब जो कॉन्डो देखो, इट्स नॉट वन मार्केट। यू सेड ऑफिस स्पेस, रिटेल, लग्जरी कॉन्डोज, मिड मार्केट कॉन्डोज, प्लॉट्स, ये सारी डिफरेंट मार्केट्स हैं। या इसीलिए मैं आपसे ये डिफरेंट साइकिल्स भी डिफरेंट है, साइकिल के टाइम फ्रेम्स भी डिफरेंट है। आपने सारे काम किए हुए हैं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। बिफोर ये रेजिडेंशियल कॉन्डो का बूम आने से पहले तो रिटेल का ही बूम चल रहा था, बहुत मैसिव बूम चल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि डेवलपर्स ना कई बार वो ये नहीं देखते हैं कि हमने इसको चलाना भी है। रिटेलर का क्या, जो रिटेलर का और जो वहाँ शॉपर्स आएंगे उनका क्या एक्सपीरियंस होगा। द मोटिव बिकम्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ग्राउंड से पहले पेट नहीं भरा तो लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, 3 फ्लोर ग्राउंड बन गए। आर्किटेक्ट को ब्रीफ दिया कि जितना मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज कर सकते हो वो करो। तो द शॉपर्स एक्सपीरियंस इन सम ऑफ दीस कॉम्प्लेक्सेस इज नॉट गुड। आप ये देखो कि DLF गैलेरिया, एरो सिटी, अपना वर्ल्ड मार्क, आप ये वर्ल्ड मार्क इन गुड़गांव, इनका एक्सपीरियंस इतना डिफरेंट क्यों है? तो शॉपर्स ओपन एरियाज बहुत हैं। तो आप ऐसा 60% ग्राउंड कवरेज के साथ 3 ग्राउंड फ्लोर बनाकर यू किलिंग द एक्सपीरियंस। सो रिटेल में अगेन, आप रिटेल इज अ वेरी गुड, आपको अच्छी इनकम यील्ड मिलेगी, अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी, बट ये एक्सपीरियंस देखने के बाद यू शुड बी पिक एंड चूज। देखो यहाँ अच्छे कंसल्टेंट्स का, अब वो हीरा चला गया, अब तो कोई इन्वेस्टर मेरे ख्याल से नहीं हाई स्ट्रीट रिटेल में पागलों की तरह पैसा नहीं डाल रहा। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि इट्स आल्सो मनी लॉन्ड्रिंग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ SEO में डाल रहे हैं। हाँ, SEO में डाल रहे हैं, SEO में बिल्कुल डाल रहे हैं, उसके बाद अच्छी रिटेल में डाल रहे हैं। सो अब वो एक हीरा आता है जब बहुत सारे लोग रियल एस्टेट ब्रोकर्स बन जाते हैं, चैनल पार्टनर बन जाते हैं, उसमें चर्निंग होती है, तो कंसल्टेंट्स बचते हैं। और हर मार्केट में दे आर वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल द टाइम, क्योंकि मैड रश में कुछ चीजों में जब फ्रेंजी होती है तो बड़े अच्छे हिडन जेम्स इग्नोर हो जाते हैं। जाते हैं। Everybody is
जिसका जहाँ इंटरेस्ट है उसी तरफ भाग रहा है, उसी को पिच कर रहा है। लेकिन बहुत अब हिडन जेम्स का बेचने का, आइडेंटिफाई करने का, बेचने का पेशेंट हर ब्रोकर, जो मैंने बहुत सारे ब्रोकर आएंगे तो मार्केट ये रैली रुकेगी, इसमें 80% हर साइकिल में मैंने देखा है, इसका एक 80% चले जाएंगे। इसमें मेरा एक पेन पॉइंट है, हाँ। एज अ रियलिटर, एज अ कंसल्टेंट पूछ रहा हूँ, इसी में मेरा एक पेन पॉइंट है। दिस इज बिन माई एक्सपर्टीज, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे और भी हैं, दिस इज बिन माई एक्सपर्टीज की हिडन जेम उठाना और उसको बेचना, बिकॉज माई थिंकिंग, मैं ऐसे ही सोचता हूँ जैसे आप सोचते हो कि राइट प्रोडक्ट अगर होगा उसके पैसे बन जाएंगे। बिल्कुल बने। बट कितने सारे क्लाइंट्स को जब मैं बताता हूँ कि आप ये चीज लो, इसमें आप कम से कम 30% बना लोगे साल में, उसमें 3 नहीं बनने, बट वो फ्रेंजी देख के उसमें इन्वेस्ट करते हैं और मुझे सोचते हैं कि ये क्या, एंड आई लूज आउट ऑन बिजनेस। You know, once the Fraud settles and the frenzy in a particular directional frenzy is over, then obviously people got more time and patience to listen to logic. And that's when another churning, market के various रूप होते हैं, various phases होते हैं. This is the phase when there will be huge churn in the market. I've always seen, ऐसी बुल रन के बाद 80% जो नए ब्रोकर कम्युनिटी होती है वो चली जाती है, आउट हो जाती है, and 20% who remain, जो रिमेन करते हैं ना, वो हर साइकिल में होते हैं, वो जाते नहीं है, लेकिन उनकी वैल्यू फिर बढ़ जाती है, बिकॉज दे आर एबल टू, साइकिल के बाद, हर साइकिल के बाद, क्योंकि वो आपको एक लॉजिकल प्रेजेंटेशन देते हैं, लॉजिकल रीजनिंग देते हैं, एंड दे, आप नैरेटिव पे नहीं खरीदते, फैक्ट्स पे खरीदते हो, झूठे लॉजिक में खरीदते, झूठे सपने नहीं, नैरेटिव पे नहीं खरीद रहे आप। और लोगों को लगने लगता है कि देखो, आज जो बनी हुई चीज है, जो नियरिंग, एक यहाँ ऐसे डेवलपर की है जिसकी गारंटी है डिलीवरी की, यहाँ वो बनी हुई चीज है, वो नैरेटिव नहीं है, दैट्स अ रियलिटी है। वो माइक्रो मार्केट लिवेबल अभी है, दैट्स अ रियलिटी, वो लिवेबल होगी, दैट्स अ नैरेटिव। तो मेनी पीपल, अब जो दूसरे एंटायर ब्रीड ऑफ जो एक्सपर्ट्स मार्केट में आ जाते हैं, ब्रोकर्स आ जाते हैं, उनके पास वो बैंडविड्थ ही नहीं है चीजों को अप्रिशिएट या एक्सप्लेन करने की, पता ही नहीं उनको। तो पीपल देन स्टार्ट थिंकिंग यार, जो चीज मुझे अभी हिडन जेम लग रहा है मैं उसको खरीद लेता हूँ, लेकिन जो चीज प्रॉमिस्ड है, फ्यूचर का नैरेटिव है, आई कैन ऑलवेज बाय दैट लेटर, क्योंकि अभी वो मैड्रश खत्म है कि वो जो 5-6 साल का, 4 साल बाद का प्राइस था वो अभी हो चुका है, तो वो बढ़ेगी नहीं कीमत उसकी। मैं अभी जो चीज अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, लॉजिक, खरीद लूंगा। इफ एट ऑल दैट थिंग कम्स अप एज प्रॉमिस्ड, आई कैन ऑलवेज गो देयर लेटर, फोमो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। उस सेगमेंट में इतनी सप्लाई आ चुकी है कि पैसे नहीं बढ़ने वाले, तो यू कैन ऑलवेज, क्योंकि अब ये भी फैक्टर हो जाता है ऐसी फ्रॉथ के बाद कि who is going to be able to deliver and who's not going to be able to deliver. हर साइकिल के बाद कैजुअलिटीज होती हैं, ब्रोकर्स की होती हैं, डेवलपर्स की होती हैं, क्योंकि माँ का प्यार सबने देखा होता है। हाँ। उसके जब माँ का थप्पड़ पड़ता है तो वो मार्केट सबकी माँ है, लेट मी टेल यू। एक चीज बताओ, अब यहीं पे डेवलपर्स के लिए एडवाइस, डेवलपर्स में तो एडवाइस है कि 3 तरह के डेवलपर, तो मैंने अपने पूरे कैरियर की ये देखा है, जो डेवलपर्स लॉन्ग टर्म व्यू से चलते हैं कि हमने कंपनी में एक कल्चर बनाना है, हमारे ये प्रिंसिपल्स हैं, और हमें एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, इसमें प्रोफेशनल की ओपिनियंस की वेटेज है। और सबसे प्राइम एग्जांपल अपने एनसीआर मार्केट का करो तो वो डीएलएफ के कई पीयर्स थे जब मैंने कैरियर शुरू किया था, लेकिन डीएलएफ ने इन सारे एट्रीब्यूट्स को अडॉप्ट किया, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स ऐसे, तो डीएलएफ इतना एक सस्टेन किया डीएलएफ ने, 75 साल 80 साल हो गए, और वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रहा है, because it had a long term vision, very good quality professionals all the time, and the professionals had a very strong voice in the company. It was not a single thought process driven this company. So these kind of developers are going to do well. So let me tell you, in a hyped up market, lot of people, lot of new developers who come, they only see in one side of the market, and when long term vision gets, see, जो long term vision है ना, उसमें आपको कई जो राइट प्रैक्टिसेस हैं वो बड़ी ऑब्वियस हैं, कि हमने इस तरीके से बेचना है, सच बोल के बेचना है, वो बड़ी ऑब्वियस प्रैक्टिसेस जब आप करते हो तो आप उन्हीं टाइप के लोगों से एसोसिएट होते हो जो कि एक अच्छे पेडिग्री के, अच्छे पेडिग्री ऑफ ब्रोकर्स आपके पास आएंगे, अच्छे पेडिग्री ऑफ क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, क्योंकि यू आर नॉट सेंडिंग आउट दो सिग्नल्स। उसको तो लगता है कि आप रेस में पीछे छूट रहे हो, बाकी लोग तो बाजी मार रहे हैं। मैंने कई बार देखा यार, हम पीछे छूट के, वो नया बिल्डर आया कितना बाजी मार गया, लेकिन वो हमें, तो वो आप उस टाइप के लोगों को, उसको तो लगता है कि आप स्लो जा रहे हो, थोड़े स्टडी जा रहे हो,
स्लो जा रहे हो, बाकी लोग बहुत आगे निकल गए। लेकिन जब साइकिल रिवर्स करती है तो आपकी क्वालिटी ऑफ सेल्स बेटर होती हैं, आपके सिस्टम्स बेटर होते हैं, आपका कंपनी का एक जो जिन लोगों से एसोसिएट की इमेज अच्छी होती है, उस फाउंडेशन पे आप और स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हो, ऊपर जाते जाते हो। जो कंपनीज की जो कॉर्पोरेट वैल्यूज को साइड में कर देते हैं, जो अपने आप को प्रोफेशनलाइज नहीं करते, जो बिल्कुल सेल्स ड्रिवन कंपनी बन जाते हैं, जो सेल गिमिक्स के बैक पे करना चाहते हैं, वो शॉर्ट टर्म में बड़ी ग्रेटिफिकेशन होती है। या आपने जैसे बताया कि ये शो कर, अब लोग क्लाइंट को नहीं बेच रहे, वो चैनल पार्टनर को पिच कर रहे हैं। कोई उनको फॉरेन टूर पे ले जा रहा है, किसी ने ये मूवी स्टार्स को बुलाया तो हम इससे बड़ा फंक्शन करेंगे। तो वो व्हेन यू अडॉप्ट दैट काइंड ऑफ अ गिमिकी कॉर्पोरेट पॉलिसी, जिसमें आपके गिमिक्स ज्यादा है मोर देन सब्सटेंस, एंड सारा फोकस इज ऑन रेवेन्यू जनरेशन। अब रेवेन्यू, तब आप कई ऐसे जो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैं और वर्किंग, आप उनको जब साइड कर लेते हो, दैट डजंट एज वेल। एंड टाइम, मैंने साइकिल के बाद साइकिल ऐसा देखा है, क्योंकि कई डेवलपर, तो ये गलती, अगर हमने कहा डेवलपर्स के लिए क्या एडवाइस है, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस, ऑलवेज विंस द रेस। जानते हुए भी कि अगर आप गलत तरीके से अपने माल को, स्टॉक को, अगर अपने स्टॉक को सबसे पहले अपने घरों को माल समझ रहे हो, माल काट रहे हो, हाँ। माल आपको काटने का वेट बन जाएगा, आपको डुबाएगा। मार्केट ने हर बार अक्रॉस द ग्लोब दिखाया है। तो स्लो एंड स्टडी, आपको रेस जीतनी है ना, तो स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस। अब मैंने देखा है कि मार्केट की फोर्सेस इतनी जब स्ट्रांग होती हैं, पीपल बिकम इंडिस्पेंसिबल। डेवलपर्स, since they know channel brokers, they don't need any good professionals, they don't need any systems. क्या होता है कि ब्रोकर की पार्टी करी, विस्की पिलाई, यहाँ एक फंक्शन करा, डांस वांस हुआ, तो माल बिक जाएगा, कंपनी ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन जब आप ये टूल्स करते हो, तो आप किन लोगों को अपने से जोड़ रहे हो, कौन लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वैसे ही इन्वेस्टर आएंगे, उसी टाइप के इन्वेस्टर आएंगे, उसी टाइप के ब्रोकर आएंगे। विपिन जी, मैंने आपको इतने सालों से देखा है, मैं बता, आपके डीएनए में ही नहीं है कि ऐसी स्टूपिड पिच दे के आप ना बेच नहीं सकते, मैं बैठा हूं आप 5 चेक लगा दो, ऐसी। तो ये सीधा चलो, प्रिंसिपल तरीके से चलो, और 100% द ग्रोथ विल बी देयर। अगर आप आंखें मूंद के खुद ही ऐसा रिस्क ले रहे हो कि आप अंडरराइट करा रहे हो और शॉर्टकट्स ले रहे हो, आपकी फोकस है सेल, इंस्टेंट सेल, आपको डिक्लेयर करना है कि आपके कंपटीटर ने 3 दिन में बेचा है, तो मुझे 2 दिन में सोल्ड आउट जरूर बोलना। तो आप अपना, यू डूइंग अ ग्रेट डिससर्विस टू योर ओन फ्यूचर। और दूसरा, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चलो। एक चीज और है, अभी ऑफ लेट ओबरॉय रियलिटी, लोधा, बिरला, ऑल बिग नेम्स ऑफ वेस्ट इंडिया, और आई वुड से बॉम्बे, प्रेस्टीज फ्रॉम साउथ इंडिया, ये लोग सब गुड़गांव में आ रहे हैं। ये पहली चीज क्यों आ रहे हैं, लाइक व्हाट आर दे सीइंग? एक तो हम बोल सकते हैं ग्रोथ है, सब कुछ है, बट दे मस्ट बी सीइंग समथिंग सो अट्रैक्टिव कि मोस्टली इट इज अ लोकल फिनोमेना। हम बोलते हैं रियल एस्टेट लोकल फिनोमेना, ये वहाँ के जाइंट्स हैं, बिरला, अदानी, दे वर इन बॉम्बे फर्स्ट। चलो ये तो कुछ साल हो गए, मगर लोधा और ओबरॉय रियलिटी तो बहुत बड़े हैं। ये क्यों आ रहे हैं गुड़गांव में, और इससे गुड़गांव के लिए क्या होगा? गुड़गांव वाज, इज एंड विल रिमेन, गुड़गांव और एनसीआर वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट द बेस्ट रियल एस्टेट मार्केट ऑफ इंडिया। इट विल रिमेन। हमने जो सारे रिस्क फैक्टर्स बोले, साइकिल का बिहेवियर बोला, बट इट विल रिमेन। सो ये कंट्रीज अब अपना बिजनेस को पैन इंडिया करने चाहती हैं, न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर करना चाहती हैं, तो ये इंडिया की बेस्ट मार्केट को कैसे और क्यों इग्नोर करें? साइकिल्स आती हैं, साइकिल्स जाती हैं, लेकिन विद नॉलेज यू अवॉइड द पिटफॉल्स ऑफ द साइकिल्स। एंड आई थिंक साइकिल्स कैन गिव यू फैंटास्टिक रिटर्न्स। जो साइकिल्स को समझता है, ही कैन गेट फैंटास्टिक रिटर्न्स। जो साइकिल के ट्रैप में आ गया, वो बिल्कुल उड़ भी सकता है। आई थिंक दे विल टीच, I would say, because I met the teams of both the companies. They will teach the local developers a lot of things, professionalism and the way to conduct business. उनके systems बहुत फर्क हैं, वो system oriented है. I met somebody from Lodha. Their senior vice president is not even from the real estate. He's from another corporate world. So he's saying the whole idea is to get corporate governance into the system. 100%। ये जो पर्टिकुलर फिनोमेना है,
सी नॉर्थ इंडिया में वो एग्रेशन स्पेकुलेशन का ज़्यादा ही रहा है ज़्यादा वो है। पर्टिकुलर। तो डेफिनेटली सी देखो, ये लोग इनके फंडामेंटल्स ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, कॉन्सेप्ट्स इनके क्लियर हैं, इनको दे मेकिंग होम्स, दे सेल होम्स, दे सेल होम्स। दे नेवर गेट इनटू द ट्रैप ऑफ माल काट दिया, सारा माल निकाल दिया हमने एक साल में। तो ये माल काटना, माल निकालना, चेक लाना, आप अपने आप को ही फूल बना रहे हो। आई मीन यू थिंक कि आपने बहुत अचीव कर लिया, लेकिन वो डजंट एज वेल। तो ये बड़े इस हिसाब से दे थिंकिंग इज मच मोर मैच्योर। डेफिनेटली दे विल टीच, सी मार्केट ऑलवेज टीचेस। अब जब ऐसे प्लेयर्स और आते हैं तो टीचिंग विल बी बेटर, पीपल लुक अप टू दीज प्लेयर्स, पीपल लर्न फ्रॉम देम कि यार इवेंचुअली देखो ये प्रिवेल कर One more reason I think which will be in the favor of गुड़गांव, अभी मेरे को कल यहाँ पीछे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में अबाउट 3-3.5 एकड़ जमीन ऑफर हुई, एंड मैं अगर आपको प्राइस बताऊंगा आप भी नहीं मानोगे कि क्या प्राइस पे ऑफर हुई। 170 करोड़ रुपीज एन एकड़। जब उसने 170 बोला, मैंने 3.5 एकड़ का बोलता नहीं, पर एकड़। तो वन ऑफ द रीजंस आई थिंक people will be forced or developers will be forced to do great work for the home buyer is because the land price is so high. See, Vipin ji, like I said, कि गुड़गांव was, is and will remain the best market of India. Cycles are one thing which are also a factor of reality. कोई irrational behavior आ जाता है साइकिल में, क्या करें, जब स्पेशली पंटिंग होती है। लेकिन having said that, Gurgaon has also got a very unique situation. You know, it started as a suburb to Delhi. Yeah. Soon, gradually, from a suburb, it became equal to Delhi. Now it's an aspiration. Now it's an aspiration. Because unfortunately, the worst possible thing which happened to Delhi is Delhi DDA. DDA. DDA ने इंडिया में इकोनॉमी खुली, the aspirations changed, multinationals started coming in. डीडीए के बाबू ने दिल्ली को दबा दिया, पनपने नहीं दिया उसने ये तो इट्स अ केस स्टडी हाउ डीडीए किल दिल्ली। दिल्ली में एक ही बार प्राइवेटाइज किया, उसका एग्जांपल आप देखो, एरो सिटी। एरो सिटी में सुपर, इट्स लाइक वर्ल्ड क्लास। आई वाज इन एरो सिटी बुलमार्क यस्टरडे, इट्स लाइक बीइंग इन सिंगापुर और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बेटर देन दैट। बट डीडीए ने जो अपॉर्चुनिटी को लूज किया और दिल्ली को पकड़ के रखा, अपनी ग्रिप से छुड़ा नहीं रखा, उससे इलीगल कॉलोनीज आ गई। देखो उनकी क्या उपज थी, द पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग इन दिल्ली में, उनका दिमाग लगा कि फ्लोर्स अलाउ कर दो। फ्लोर्स इज द, दुनिया भर में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जहाँ सिंगल फैमिली यूनिट्स पे आप 4 घर बना रहे हो। सड़कें उस हिसाब से बनी है, सीवरेज उस हिसाब से, पार्किंग की स्पेस नहीं है। तो डीडीए की अकल देखो कि फ्लोर अलाउ कर दी। बहुत दिनों बाद उनको अकल आई कि तो पार्किंग डिजास्टर हो रहा है, फिर उन्होंने स्टिल लाया। बट दे नेवर डिड एनी मास्टर प्लानिंग जहां वर्ल्ड क्लास प्राइवेट सेक्टर को लेके आओ, पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, अच्छी कॉन्डोज के लैंड को ऑक्शन करो, क्योंकि उनको सब कुछ खुद करना था। कोई ऑफिस, एक धेले की नेहरू प्लेस के बाद ये ऑफिस स्पेस नहीं लेकर आ सके। सो सिंस दिल्ली बिज द बस एंड गुड़गांव, सरप्राइजिंगली हरियाणा गवर्नमेंट ओपन द डोर्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ भी अगर फायदा जिद कर लेता डीडीए की तरह कि हम नहीं करना तो होता नहीं। तो अब गुड़गांव की स्टोरी आगे बढ़ चुकी है और दिल्ली कांट रिवर्स इट नाउ। सो गुड़गांव इज, कई लोग बोल रहे हैं नोएडा गुड़गांव को बीट कर देगा, गुड़गांव पीछे रह जाएगा। देखो ये चीज ना जनरेशनल होती है। आप जो गुड़गांव का डेमोग्राफी, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा करें तो आप डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत प्रोफाइल डिफरेंट हो चुका है। हाँ, गुड़गांव का तो हो चुका है। गुड़गांव, आप गुड़गांव में जाओ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, यू नो व्हाट आई मीन, नोएडा में, फरीदाबाद में, वेरी डिफरेंट। अब ये चीजें इतनी जल्दी से रिवर्स नहीं होती, दीज आर जनरेशनल थिंग, एक लाइफ स्पैन में ये चीज नहीं होती। तो गुड़गांव की पोजिशनिंग डिफरेंट हो चुकी है। गुड़गांव इज गोइंग टू रिमेन, मतलब वेरी एस्पिरेशनल एंड कोवेटेड मार्केट फॉर बाइंग होम्स एंड बाइंग office space, for retail, for lifestyle. Although I do feel that the authorities can do much better in terms of infrastructure, picking up garbage. And you know, यहाँ भी अगर ये public private collaboration कर ले for the infrastructure, they can change Gurgaon. Even the public paths, pedestrian walkways, जो central dividers की greenery है, आप खुद नहीं कर पाते तो public private partnerships करो, public washrooms, थोड़े पब्लिक पार्क्स, तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा अगर आप कुछ अगर आप करो तो
I wish the unfortunate part is, see, Gurgaon, everything is in favor of Gurgaon. All these factors I said, and Gurgaon will remain. लेकिन ultimately denominator बोलूं क्या है? Affordability. Affordability. या मैंने आपको पूरी साइकिल इसलिए समाई, जहां वो ऊपर जाएगा मीन रिवर्शन उसको उठा के वापस लाएगा. Thank you so much, Pankaj ji. It was a pleasure listening from you. And thank you everybody for watching. I'm sure you will take back a lot of value from it. Please like, subscribe, and if whatever you have comments or if you have questions for Pankaj ji, you can put it in the comment section. Thank you so much.